دوستو آدابرس، میں ہوں عاطف توقیر۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں اور آج کے موضوع پر بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بلوچ دوستوں کو ثقافتی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کر دوں۔ ایسے تمام دوست جو بلوچ ثقافتی دن آج منا رہے ہیں، انہیں میری جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی نے ایک دھواں دھار تقریر کی اور بتایا کہ کتنا ضروری ہے ملک میں پارلیمان کی بالادستی اور دستور کی بالادستی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی یہ بات کر رہے ہیں۔ آج کی خبر یہ تھی کہ سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی جس میں شامل ہے اس وقت، انہوں نے محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار بنا دیا ہے۔ پھر کل ہی پارلیمان میں عطا اللہ تاڑ نے بھی تقریر کی اور انہوں نے بھی اپنے جوہر فشانی دکھائی۔ آج ذرا میں ان دونوں موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو قطبیت ہے یا کسی بھی معاشرے میں پولرائزیشن ہوتی ہے، سیاسی قطبیت جس کو کہتے ہیں یا پولیٹیکل پولرائزیشن، وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں دو حصے بن جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی معاشرہ دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا اور ہمارے مخالف، یعنی از ورسز دیم والی بات ہو جاتی ہے۔ ہر وہ آدمی جو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ کو لگتا یہی ہے کہ وہ آپ کی مخالف جماعت کا ہے۔ کل آپ نے جو دو تقاریر سنی قومی اسمبلی میں نے ان پر بات بھی کی ٹویٹر پر، یہ دونوں ہی اپنے لحاظ سے سوالیہ نشانات لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی درست بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کی درستی یا بات کی نادرستی کی بجائے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات مجھے سوٹ کرتی ہے، میرے نظریے کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ قطبیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اپنے مخالف یا اپنے سے اختلاف کرنے والا ہر شخص مخالف جماعت کا آدمی لگتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے، اگر آپ کسی جگہ پر کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے یعنی پیچھے آپ کے دیوار ہو اور آپ کے سامنے ایک میدان ہو، تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص میدان کے مرکز سے آپ کی جانب بات کر رہا ہے یا دوسری جانب سے، میدان کے دوسرے حصے سے۔ آپ کو ہر وہ شخص جو اپنے جانب نظر آئے گا، وہ لگے گا کہ جیسے مخالف جماعت کا ہے وہ۔ بدقسمتی دیکھیے کہ آج پی ٹی آئی کے دوست محمود خان اچکزئی کے صدارتی امیدوار کے لیے نام دیے جانے پر خوش ہیں۔ بدقسمتی دیکھیے کہ ماضی میں یہی بات کہنے پر عمران خان اور پی ٹی آئی محمود خان اچکزئی کو غدار، وطن فروش، ضمیر فروش اور جانے کیا کیا کہتے رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اختلاف اصولی بنیادوں پر نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اتفاق کس اصولی بنیاد پر ہے۔ ماضی میں اگر آپ محمود خان اچکزئی سے کوئی اصولی بنیادوں پر اختلاف کرتے تو آج آپ کے ان کی حمایت کے عمل کو بھی اصولی بنیادوں پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ماضی میں آپ ایک شخص کو اس بنیاد پر گالی دے رہے ہوں کہ وہ آپ کے نظریے کو سوٹ نہیں کرتا، تو آج آپ اس شخص کو اگر تعریف کے کلمات نوازیں تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس کا نظریہ پسند آیا ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ آپ اصولی کی بجائے اپنے نظریے کو سوٹ کرنے کی وجہ سے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح عطا اللہ تارڑ کی بھی تقریر تھی۔ نون لیگ کے دوست ماضی میں ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے رہے ہیں۔ کل عطا اللہ تارڑ صاحب وہ دستور اور عوامی قوت کی بالادستی کی بجائے، پارلیمان کی بالادستی کی بجائے، وہ محمود خان اچکزئی کو اس بات پر تانے دے رہے تھے کہ آپ نے فوج پر بات کیسے کر لی ہے۔ صاحبو، پہلی بات تو یہ ہے، ان دونوں تقاریر کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بات یہ کہ محمود خان اچکزئی نے جو بات کی وہ تو بالکل درست ایک آئینی بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ اگر عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ عاطف توقیر یا کوئی بھی شخص عمران خان کو پسند کرے یا نہ کرے، اس سے بہت بالا ہے عوامی مینڈیٹ۔ اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو پھر تو کسی صورت یہ جائز ہی نہیں ہے کہ پارلیمان میں اس مینڈیٹ کی جگہ کوئی اور بیٹھے۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مینڈیٹ دیا ہے؟ اس کے لیے اگر پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا ہے یا شکایت کی تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ تھا
अगर वाकई नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें वाकई आइन की बालादस्ती और अवामी ताकत की बालादस्ती की हामी हैं, तो उनको तो खुद ही ये चाहिए था कि वो फौरी तौर पर एक आज़ाद कमीशन कायम करते, खुद मुख्तार कमीशन कायम करते, हत्ता कि अगर इसमें कोई गैर मुल्की या बैनुल-अक़वामी कमीशन नाफिज करने की या बैनुल-अक़वामी कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने की दावत दी जाती तो भी गलत नहीं था। अगर आप वाकई अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं और कोई शख्स ये दावा कर रहा है कि आपके पास मैंडेट अवामी नहीं है, तो ऐसी सूरत में तो आपको हर सूरत में खुद ब खुद सामने आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब ये तो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमें दो टोक अंदाज में पता चले कि वाकई अवाम ने हमें वोट दिया या नहीं दिया। ऐसे में आप फौज पर आपने बात क्यों की और फौज पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने जुमला क्यों कसा? ये अगर आपका मुद्दा है तो ये बड़ा अफसोसनाक मुद्दा है अताउल्लाह तारड़ साहब। बात ये है कि अगर आप वाकई अवाम के नुमाइंदे हैं तो आपको अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए, फौज की नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। ये बदकिस्मती की बात होगी कि आप पार्लियामान में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं जी फलां ने हम वो फौज पर बात क्यों की है। दूसरी बात ये कह रहे हैं आप 9 मई का आपने जिक्र किया तारड़ साहब ने, तो साहब 9 मई के साथ साथ 9 फरवरी का जिक्र भी करें। बात यह है कि अगर फौज पर हमला काबिल मुज़म्मत है जो कि है, तो फौज का आइन पर हमला कैसे जायज़ होगा? उसको भी वैसे ही काबिल मुज़म्मत होना चाहिए ना। ये कैसी बदकिस्मती की बात है कि फौज को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो लेकिन आइन को फौज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो। ये तो ज़्यादती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वाकई अवामी ताकत और अवामी बालादस्ती पर यकीन रखते हैं तो फिर इसके अलावा आपको क्या सजेस्ट किया जा सकता है कि आप एक तरफ तो पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करें और दूसरी तरफ आप यकीनी बनाएं कि किसी सूरत में कोई धांधली वो ना हो, ना अभी हो ना माजी में। अगर माजी का कई बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि 2018 में भी तो उसकी भी तहकीक कर लें। अगर किसी ने उस वक्त की है तो तहकीक करें और आइन शिकनी के जुर्म में ऐसे लोगों को सजा दें। वो बाजवा हो कि वो जनरल आसिम मुनीर हो, वो कोई भी हो, आइन शिकनी किसी सूरत में नहीं कबूल हो सकती, कोई भी हो। तो ये तो एक तरफ हो गई बात। तो इसलिए मेरी राय में नून लीग के वो दोस्त जो ये कहते फिर रहे हैं जी कि फलां ने ये कर दिया था और फलां ने फौज पर जुमला कर दिया, ये ठीक वही जुमलेबाजियाँ हैं साहिबो जो 3 साल पहले ये पीटीआई वाले लोग कर रहे थे। अब मसला ये है कि आपको नून लीग वालों को अगर कोई शख्स समझाने की कोशिश करे तो वो कहते हैं जी आपका तो ताल्लुक पीटीआई से हो गया है, और पीटीआई वालों को कोई समझाने की कोशिश करे वो कहते हैं जी आपका तो ताल्लुक, आप तो फौज पिछले 2 साल से आपने देखा होगा 2 साल पहले यही पीटीआई वाले लोग एक कहकर फौज के हक में फौज पर बात करने पर 5 साल कैद और 5 लाख जुर्माने के हक में मुहिम चला रहे थे, और 2 साल बाद ये हर वो शख्स जो इनसे खिलाफ कर रहे कह रहे हैं जी आप तो फौज के लोग हैं। साहब ना आप फौज के तब खिलाफ थे और ना आज हामी हैं, और इसी तरह ना आप पहले हामी थे और ना खिलाफ हैं, ये सब एक ही हैं। आप सब लोग बुनियादी तौर पर उसूली मौक़िफ़ पर कायम नहीं हैं। आपको इस वक्त लग रहा होगा कि जी पीटीआई तो बड़ा उसूल का, कोई असूल का नहीं, इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रही है पीटीआई का कोई ताल्लुक इस वक्त भी नहीं है जमहूरियत या उससे। इस वक्त उसको सूट कर रहा है दस्तूर या और पार्लियामान की बालादस्ती, इसलिए वही बोल रही है। माजी में सूट नहीं कर रहा था तो उसके खिलाफ जारी थी। इमरान खान के दौर में पार्लियामान फंक्शन ही नहीं किया है। इमरान खान के दौर में पार्लियामान जैसा गैर फाल इदारा कोई नहीं बचा था। इमरान खान ने खुद अपने ज़ुबान से माना है कि उस वक्त बाजवा बादशाह हुआ करता था और तमाम फैसले ISI और फौजियों के हाथों करवाए जाते थे, और अपोजिशन के जो कानून साज थे उन पर दबाव डाले जाते थे और एजेंसियों को इस्तेमाल करके कानून साजी की। ये इमरान खान ने खुद बात की। तो इसलिए इमरान खान का ना माजी में कोई जमहूरियत से ताल्लुक था ना आज है। और इसी तरह नून लीग वाले जो माजी में वोट को इज्जत दो कहते रहे हैं, आज वो फौज को इज्जत दो कर रहे हैं। ना इनका इसका मतलब है माजी में कोई ताल्लुक था ना आज है। इसलिए आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ये काफ़ी नहीं होता कि कौन सी बात आपको सूट कर रही है या आपके रहनुमा के हक में। याद रखिए, अगर आप जमहूरी हैं तो आपके लिए इमरान खान जमहूरियत या नवाज शरीफ जमहूरियत नहीं होना चाहिए। जमहूरियत आपका बुनियादी मुद्दा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी आपका बुनियादी मुद्दा होना चाहिए। अताउल्लाह तारड़ ना बनिए और इसी तरह आप मुराद सईद भी ना बनिए। आप कोशिश कीजिए कि जमहूरियत के साथ खड़े हों, और जमहूरियत के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आप मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात करें। महमूद खान अचकज़ई साहब तकरीर कर रहे हैं आइन की बालादस्ती की और खड़े हैं उसके साथ जो आइन को मानते ही नहीं है। ये आज पीटीआई आइन की बालादस्ती की बात बिल्कुल उसी तरह कर रही है जिस तरह फौज करती है। फौज भी ये कह रही होती है कि साहब आइन ने हमें
हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो साहब आइन ने तो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, क्या आइन को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है? उसी तरह आज पीटीआई कह रही है जी मुल्क में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इनको सूट कर रही है। अभी आप इनको इक़्तिदार दे दें, इन्होंने मुल्क में फिर से फस्तायत नाफिज करनी है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान कोई 15 दर्जे आज़ादी सहाफ़त में नीचे गिरा है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान 23 दर्जे करप्शन में नीचे गिरा है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान इंसाफ के महकमे में नीचे गिरा है, जमहूरियत के इंडेक्स में नीचे गिरा है। तो ये जुमले जो अगर कोई ये कहे कि इमरान खान या उनकी जमात का कोई ताल्लुक जमहूरियत से है तो बड़ा, और फिर महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग जिनकी पूरी ज़िंदगी ये कहते गुजरी है कि मुल्क में दस्तूरी बालादस्ती होनी चाहिए, वो अगर इमरान खान की जमात के साथ खड़े हों तो मेरे ख्याल में ये खुद में सवाल बनता है। आम बात याद रखिए, ये बात तो आम नहीं है कि इमरान खान की जमात ने उनको नामज़द किया है। अहम बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई ने ये नामज़दगी कबूल की है। ये है सवाल। मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में अफसोसनाक सूरत हाल है। इसलिए अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का, वही अब जैसे पामाल होता नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि जो सेन वॉइसेस हैं ना, जो सोचने वाले लोग हैं, जो सवाल करने वाले लोग हैं, उनको समझें। मैंने कल भी एक ट्वीट में कहा था, बड़े इन दिनों तो पीटीआई वाले भी और नूनली वाले भी फ़ौरन गालियां देने लग जाते हैं। आपको लगता है कि केपीके में पीटीआई ने धांधली नहीं की होगी? साहब पाकिस्तान में धांधली जिसका मौका लगेगा ना वो करेगा। वो फौजियों का मौका लगेगा तो वो भी करेगा, वो एमकेएम का मौका लगेगा तो वो भी करेगी। जो पीटीआई का मौका या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का मौका कोई छोड़ेगा थोड़ी, क्योंकि जमहूरियत अंदर नहीं है। ये जमहूरियत की नारेबाजियां हैं। अवामी राय ना पीटीआई का मसला है, ना नून लीग का मसला है, ना किसी और जमात का मसला है। अवामी राय नहीं, इक़्तिदार मसला है। ये है बुनियादी मामला। अभी अगर किसी जमात को लग रहा होगा ना कि चलो अवाम हमारे साथ है, मकबूलियत की लहर है, तो लगेगा जी हाँ जी हम तो जमहूरियत के हक में हैं। आप जमहूरियत के हक में नहीं है। इस वक्त आपको लग रहा है कि जमहूरियत आपको सूट कर रही है, इसलिए आप जमहूरियत के हक में नारे लगा रहे हैं। जमहूरियत के हक में होने का मतलब ये होता है कि आप अवामी राय को कबूल करें हर हाल में, जिस भी हाल में। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोशिश करें कि जो हमारे जैसे जो इस कुतुबियत के दरमियान मरकज़ के लोग हैं, जो उस तरफ भी और इस तरफ भी देख सकते हैं, उनको गालियां देने की बजाय उनकी बात सुने, कभी कभी सोचा करें। कोशिश करें कि सोचने वाले लोगों को सुने और उनको समझने की कोशिश करें कि ये बात आगे भी पहुंचे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो मसालेदार गुफ्तगू और ख़बरें कर रहे हैं वो आप पहुंचा रहे हैं इधर उधर, क्योंकि वो सूट कर रहे होते हैं। कभी कभी अपनी मर्जी का सच सुनने की बजाय सच सुना करें। सच कभी कभी मर्जी का नहीं होता। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आदाब।